Hello, student. Yes, sir. Okay, so we can start. Today we are going to cover what is support vector machine. So first of all, I will give some introduction regarding a support vector machine. So first we understand what is the difference between supervised learning and unsupervised learning, because we don't know how this supervised vector machine is a part of which machine learning algorithm. So here this is the one model. 1 minute, I can hide. Uh, okay, see, this is the supervised learning and unsupervised learning. There are small difference here. So supervised learning algorithm are trained using labeled data. Unsupervised learning algorithm are trained using unlabeled data. So supervised learning. So here our vector machine, support vector machine, we are going to learn our support vector machine. So there are three type of machine learning algorithm: supervised machine learning algorithm, unsupervised, reinforcement. So supervised vector machine, SVM, it is a classification category. So other are regression, decision tree, random forest, and SVM is under the SVM classification category. So first of all, what is the difference between supervised and unsupervised? Supervised learning model takes direct feedback to check if it is predicting correct output or not. Unsupervised learning model does not take any feedback. Supervised learning model predict the output. Whatever we are giving the input data, like for example, independent variable or dependent variable, we are give to our model. That time we are adding some our point, for example our data, particular data. So that based on that data we are predicting something based on our model. It is called supervised learning. Unsupervised learning model find a hidden pattern in the data. In the supervised learning, input data is provided to the model along with the output. In supervised learning, only input data is provided to the model. There are no output here. So the goal of supervised learning is to train the model so that it can predict the output when it is given new data. The goal of unsupervised learning is to find the hidden pattern and useful insight from the unknown data set. Supervised learning needs supervised to train the model. Unsupervised learning does not need any supervision to train the model. Supervised learning can be categorized in a classification, regression problem. Unsupervised learning can be classified in clustering and association problem. Supervised learning can be used for those cases where we know the input as well as corresponding output. Unsupervised learning can be used for those cases where we have only input data and no corresponding output. Supervised learning model produce an accurate result. Unsupervised learning model may give less accurate result as compared to supervised learning. Supervised learning is not close to true artificial intelligence, as in this we first train the model for each data and then only it can predict the corresponding output. Unsupervised learning is more close to the true artificial intelligence, as it learns similar as a child learn daily routine things by his experience. In include various algorithms such as linear regression, logistic regression, support vector machine, right? I am explaining today support vector machine. That's why I am explaining that difference, because we know the where is the support vector machine is in machine learning category, algorithm category, multi-class classification, decision tree, Bayesian logic, Bayesian naive bias, right?
and it includes various algorithms such as clustering, KNN, a priori algorithm. So that's why I am explaining this PPT for you, because you know where is the this support vector machine is lies. Support vector machine is also a part of regression and classification. Both the things we can do through the support vector machine. So I am now we are going to learn what is SVM. First of all, we cover some theory, then I will give some hands-on practice. So first, what is SVM? SVM means support vector machine. This is a small diagram here. Here there are two type of data. One is square and second is a circle. So first we give this type of data to our model, and that model will train, and whenever we are passing new data, that time our model will give the proper prediction of our new data is it is a square or it is a circle. That means it gives the proper prediction. So that's why we are develop this type of algorithm SVM. So here there are small diagram, right? There is a if we want to categorize anything, so we can split this data into a two category. For example, uh, mm, we have some data, right? For example, we have mango and apple, so we can classify mango and apple, so we can separate out in different places. So that time we are giving some line in between these two category. Here सर्कल डेटा एंड स्क्वायर डेटा, यहाँ पे दो टाइप के डेटा है, सर्कल है और स्क्वायर डेटा है, राइट? तो उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक बीच में एक हाइपर लाइन, मार्जिनल लाइन, एक हाइपर लाइन यानी कि एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको हम डिसीजन बाउंड्री भी बोलते हैं। तो पहले तो एसवीएम किसके लिए है? वी कैन परफॉर्म दिस एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। मेन दिस एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन, एसवीएम जो है वो मेनली क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। एसवीएम के थ्रू हमें हाई एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी वैल्यू मिलती है, राइट, एज कंपेयर टू अदर एल्गोरिदम। और एसवीएम ही क्यों यूज़ होते हैं? एसवीएम के अंदर हम लोग हाई और ह्यूज डेटा सेट जब होता है तब हम एसवीएम एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए एसवीएम क्यों यूज़ करना है। एसवीएम जब हमारे पास हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, डेटा सेट होता है, और हाई ह्यूज एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास फीचर सिलेक्शन हमने किया है और उसके बाद भी हमारे पास ह्यूज एट्रीब्यूट्स है, तब हम लोग ये हाई डायमेंशनल एसवीएम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये एक एसवीएम को ड्रॉ करने के लिए, सेपरेट डेटा को सेपरेट करने के लिए एक हाइपर प्लेन यूज़ कर रहे हैं। हाइपर प्लेन यानी एक लाइन, मार्जिनल लाइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो बीच में एक डिसीजन, हाइपर प्लेन को हम लोग डिसीजन ट्री भी बोला जाता है, राइट? डिसीजन बाउंड्री और डिसीजन ट्री नहीं, डिसीजन बाउंड्री हम उसको बोल सकते हैं, राइट? सो आपको बेसिक पता चला कि ये सपोर्ट वेक्टर, राइट, मेनली बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग अभी बात करेंगे। बाइनरी क्लासिफिकेशन मीन्स हमारे पास टू डेटा है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, राइट, फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल, राइट? तो मेल और फीमेल में भी हम लोग यस नो, उसके डिसीजन यस नो, राइट, उस टाइप के डेटा है, तब भी हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लोग फर्स्ट एसवीएम एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, राइट? तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें यहाँ पे हाइपर प्लेन दिया है, और हाइपर प्लेन के बीच में एक मार्जिन लाइन है, और डी माइनस और डी प्लस, यहाँ पे डिसीजन नेगेटिव, डिसीजन पॉजिटिव यहाँ पे हमें एक दिया गया है, और दो लाइन, वो लाइन कैसे प्रिडिक्ट करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। सो आपको बेसिक आइडिया हो गया है कि एसवीएम हम क्यों यूज़ करेंगे। एसवीएम पहले तो सुपरवाइज कैटेगरी है, सुपरवाइज लर्निंग में मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। सेकंड, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन मीन्स एट्रीब्यूट्स होते हैं, तब हम लोग एसवीएम का यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एसवीएम के थ्रू हम लोग रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं। एसवीएम के अंदर
right. First we are understand what how to do classification. So here support vector machine or SVM is one of the most popular supervised learning algorithm which is used for classification as well as regression problem. However, primarily it is used for classification problem in machine learning. The goal of the SVM algorithm is to create the baseline or decision boundary that can segregate n-dimensional spaces into a classes so that we can easily put the new data point in the correct category in the features. This based decision boundary is called a hyperplane. आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, राइट? व्हाट इज अ डिसीजन बाउंड्री और व्हाट इज अ हाइपरप्लेन? सो बोथ टर्म्स आर सेम. तो अभी हम लोग नेक्स्ट एस वी एम रिलेटेड टर्म्स हम लोग अभी स्टार्ट लर्निंग करेंगे, राइट? नेक्स्ट एस वी एम चूजेज द एक्सट्रीम पॉइंट वेक्टर. जो भी ये यहाँ पे पॉइंट्स है, ये डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर यहाँ पे सर्कल है और स्क्वायर है, हम लोग उसको वेक्टर बोलेंगे. वेक्टर यानी वन काइंड ऑफ पॉइंट्स. तो हमें ग्राफ में कैसे प्रिंट करना है मैं पाइथन के अंदर आपको बताऊंगा वो कैसे प्रिंट होगा, राइट? तो the goal of the SVM algorithm is to create the baseline or decision boundary that can segregate n-dimensional spaces into a classes so that we can easily put the new data point in the correct category in the features. This based decision boundary is called a hyperplane. Next, SVM choose the extreme point vector that help in the creating hyperplane. हमें hyperplane create करने के लिए पॉइंट और वेक्टर का बहुत ही यूजफुल यहाँ पे मिलेगा, राइट? दिस एक्सट्रीम केसेस आर कॉल्ड अ सपोर्ट वेक्टर मशीन. सपोर्ट वेक्टर किसको बोला जाता है? जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो मिडल लाइन है उसको हाइपर प्लेन बोलते हैं, और जो अपोनेंट ये सर्कल है उसका अपोनेंट है स्क्वायर और रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का अपोनेंट है सर्कल. जो मार्जिन हाइपर प्लेन के सबसे नज़दीक जो रेक्टेंगल है वो टच करके जा रहा है, राइट? सेकंड लाइन जो है मार्जिन, राइट, वो टच करके यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ पे दूसरा जो है ये सर्कल को टच करके लाइन जा रहा है. तो ये जो टच करके जो वैल्यूज जा रही है उसको हम लोग सपोर्ट वेक्टर बोलेंगे. वो सपोर्ट कर रहा है, राइट? राइट. हमें ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए सपोर्ट वेक्टर, ये मार्जिनल लाइन, राइट, ये लाइन ऐसे ही लिनियरली कैसे प्रिंट करना है, नॉन लिनियरली कैसे प्रिंट करना है, वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, राइट? लेकिन हमें ये जो वेक्टर अभी प्रिंट हो रहा है लाइन को टच करके, इट इज़ कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर, इसीलिए उसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन. नेक्स्ट यहाँ पे SVM चूज द एक्सट्रीम पॉइंट वेक्टर दैट हेल्प इन क्रिएटिंग द हाइपरप्लेन. हाइपरप्लेन को क्रिएट करने के लिए वेक्टर और वेक्टर के आजू बाजू जो लाइन है, हाइपरप्लेन के आजू बाजू जो लाइन है उसके ऊपर से वेक्टर पास हो रहे हैं, राइट? वेक्टर टच होके जा रहे हैं. दिस एक्सट्रीम केस आर कॉल्ड एज अ सपोर्ट वेक्टर एंड हेंस एल्गोरिदम इज टर्म एज द सपोर्ट वेक्टर मशीन. वो उस टर्म को क्या बोला जाता है? सपोर्ट वेक्टर मशीन. कंसिडर द बिलो diagram in which there are two different category that are classified using a decision boundary or hyperplane. तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक कैट है और यहाँ पे एक डॉग पपी है, राइट? तो वो पास्ट लेबल डेटा है, वो लेबल डेटा सुपरवाइज लर्निंग लेबल डेटा पे ही काम करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग हमारे मॉडल को पहले ट्रेन करेंगे, ट्रेनिंग डेटा देंगे. तो उसके अंदर हम लोग कैट वाले भी डेटा देंगे और डॉग वाले भी डेटा देंगे, और ट्रेनिंग और टेस्टिंग करके हम मॉडल जनरेट करेंगे. उसके बाद हम लोग एक प्रिडिक्शन वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. वो प्रिडिक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर एक नए डेटा डालेंगे, उसका नाम न्यू डेटा. वो उसके अंदर वो मॉडल को पता नहीं है वो किस टाइप का डेटा है, वो प्रिडिक्ट करेगा जब हम लोग ने वो जो मॉडल हमने ट्रेन किया है, राइट, उसके अंदर हम लोग एक नया डेटा डालेंगे. उसके बाद वो प्रिडिक्शन करके देगा इट इज़ अ कैट और इट इज़ अ डॉग, राइट? तो हम एक नया डेटा डालेंगे तो उस टाइम हमें आउटपुट मिलेगा इट इज़ अ कैट. तो ये फॉर्म के अंदर, ये फ्लो के अंदर हम लोग ये मॉडल वर्क कर रहा है सुपरवाइज लर्निंग. तो सुपरवाइज SVM algorithm कैन बी यूज फॉर फेस डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन. तो उसके लिए ये SVM हाईली यूज हो रहा है. आप लोग PhD और MTech में जाओगे यार तब ये यूज आपको होगा इस टाइप के. अभी हमें एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन्स है, तो
ये लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, राइट। यहाँ पे ब्लू कलर की सर्कल है, यहाँ पे रेड कलर की स्क्वायर है, तो उसके बीच में से ये लाइन जा रही है, तो ये लाइन कैसे एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए थोड़ा मैथमेटिक्स से थोड़ा, राइट। तो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन जो हमारी ऑप्टिमल, राइट, अच्छे से अच्छी यानी ऑप्टिमल हाइपर प्लेन जो होगी, राइट, वो हम लोग फाइनल करेंगे ये लीनियरली बीच की लाइन प्रिंट करने के लिए, डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करने के। उसके बाद वहाँ पे मैक्सिमम मार्जिन, यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्जिन है, वो मैक्सिमम मार्जिन किसको बोला जाता है, जो भी फर्स्ट डेटा है एक साइड और दूसरी साइड, राइट। तो एक लाइन है उसके लेफ्ट साइड और इस लाइन के राइट साइड, वहाँ पे सबसे नज़दीक जो वेक्टर है वहाँ से हम लोग डॉटेड लाइन ये जो प्रिंट हो रही है उसको मैक्सिमम, ये बीच के दोनों के बीच की जो मैक्सिमम और उसका जो सेंटर बनता है उसको हम लोग ऑप्टिमल हाइपर प्लेन, उस टाइम हम लोग हाइपर प्लेन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट जो टच होके जा रही है डॉटेड लाइन और सेकंड जो स्क्वायर के ऊपर से जो डॉटेड लाइन जा रही है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है, कोई मतलब नहीं है कि आपको एक ही पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होगा, लेकिन मैक्सिमम आपका डिस्टेंस दोनों के बीच में मैक्सिमम मार्जिन होना चाहिए, राइट। और जो मार्जिन के बीच में एक मिडल की जो सेंटर वैल्यू है, राइट, उसको ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बोला जाता है, राइट। आपको ऑप्टिमल हाइपर प्लेन और हाइपर प्लेन यानी ये बेस्ट डिसीजन बाउंड्री हमारी हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट थोड़ा और भी क्लैरिटी लाते हैं, राइट। यहाँ पे ग्रीन कलर में है, यहाँ पे ब्लू कलर में है, तो पॉजिटिव हाइपर प्लेन, ये जो फर्स्ट डॉटेड लाइन है वो पॉजिटिव हाइपर प्लेन, और यहाँ पे वो जो नज़दीक जो रेक्टेंगल है ब्लू कलर का उसको सपोर्ट वेक्टर है, यहाँ पे ग्रीन कलर का जो सर्कल है उसको हम लोग सपोर्ट वेक्टर बोलेंगे, राइट। और इस बाजू जो लेफ्ट साइड और कोई भी एक बाजू आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन करना है, नेगेटिव हाइपर प्लेन और पॉजिटिव हाइपर प्लेन। हाँ, हमेशा राइट साइड पे नेगेटिव हाइपर प्लेन आएगा और लेफ्ट साइड जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और उसके बीच में जो ऑप्टिमल हाइपर प्लेन है, राइट, उसको हम लोग डिसीजन बाउंड्री बोलेंगे। तो ये कैसे हम लोग पाइथन के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी हम लोग पाइथन के प्रोग्रामिंग के थ्रू, मैटप्लॉट लाइब्रेरीज के थ्रू हम लोग करेंगे। अभी नेक्स्ट देयर आर 2 टाइप ऑफ एसवीएम, लीनियर एसवीएम एंड नॉन लीनियर एसवीएम। वो नॉन लीनियर किसको बोला जाता है और लीनियर किसको बोला जाता है, राइट, वो भी हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 तरह के हैं, दिस इज द 2 तरह के एल्गोरिदम है। फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉन लीनियर, यहाँ पे हम लोग बीच में से कोई लाइन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हाइपर प्लेन नहीं कर सकते, तो दिस इज द नॉन लीनियर, दिस इज द प्रॉब्लम विथ लीनियर एसवीएम। लीनियर एसवीएम में ये प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ दिस इज द नॉन लीनियर। तो ये कैसे प्रिडिक्ट करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। पहले फर्स्ट अंडरस्टैंड करेंगे कितने टाइप है, राइट। तो फर्स्ट है लीनियर एसवीएम एंड नॉन लीनियर। लीनियर SVM is used for linearly separable data, which means if a data set can be classified into 2 classes by using the single straight line, then such data is termed as a linearly separable data, and classify is used called a linear SVM classifier। हम लोग एक क्लासीफायर कोड के अंदर हम लोग क्लासीफायर क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग लीनियर SVM क्लासीफाई SVM बनाएंगे। और नॉन लीनियर क्या है, नॉन लीनियर एसवीएम इज यूज फॉर नॉन लीनियरली सेपरेबल। हम लीनियरली सेपरेबल नहीं कर सकते, यानी बीच के अंदर हम लोग लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। मैंने अभी आपको ये वाला डायग्राम बताया है, उसके अंदर हम लोग लीनियरली सेपरेबल नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ यहाँ पे बहुत सारे डेटा सर्कल फॉर्म में है, तो सर्कल के अंदर हम लोग बीच में लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। यहाँ पे एक एसवीएम नहीं अप्लाई कर सकते, तो इसके अंदर ये जो ट्रिक है उसके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कर्नल ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम है, थोड़ा मैथमेटिक्स बहुत हाईली यूज हो रहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट नॉन लीनियर एसवीएम इज यूज फॉर नॉन लीनियरली separated data, which means if a data set cannot be classified by using a straight line, then such data is termed as a non-linear data, and classifier used is called a non-linear SVM classifier। ओके, तो मैक्स मार्जिन क्लासीफायर किसको, फॉर्मलाइज नोशन ऑफ द बेस लीनियर सेपरेटर,
Largerian multiplier way to convert a constraint optimized problem to one that is easier to solve. Kernel projecting data into a higher dimensional space make it linearly separable. Complex depend on only on the number of train example, not on the dimensional of a kernel space. सो यहाँ पे एक टेनिस एग्जांपल है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक एग्जांपल है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल है प्ले टेनिस और रेड कलर में है डू नॉट प्ले टेनिस। तो उसको सेपरेट करने के लिए बीच में एक लाइन है, राइट। तो लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन यहाँ पे जो ग्रीन कलर है और रेड कलर है, राइट, नॉट प्लेइंग, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे देखो दूसरे भी, ऑल द हाइपर प्लेन इन आर डी आर parameterized by the vector w and constant b can be expressed w into x plus b is equal to 0. remember the equation of the hyperplane is algebra. ये algebraic का algorithm है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे अभी, ओके। और एक प्रॉब्लम देख रहे हैं अभी, प्रॉब्लम विद द लीनियर। तो लीनियर में क्या है, हम लोग बीच में, मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द डिसीजन फंक्शन इज़ नॉट लीनियर। तो यहाँ पे लीनियर डेटा सर्कल के अंदर ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। सो डेटा पॉइंट आर लीनियर सेपरेबल इन द स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग बीच में हम लोग ये लीनियर हाइपर लाइन बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्कल में बाउंड्री ड्रॉ हो रही है, तो ये नॉन लीनियर पार्ट हो गया है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ओवर ट्रेनिंग और ओवर फिटिंग। Overfitting. Well-known problem with the machine learning method is overtraining. This means that we have learned the training data very well, but we cannot classify unseen example correctly. For example, botanist really knowing the tree. Every time he see a new tree, he claim it is not a tree. So ये एक example है, right? ओवर ट्रेनिंग और ओवर फिटिंग के अंदर जो मेजर ऑफ द रिस्क ऑफ ओवर ट्रेनिंग विथ SVM, देर आर ऑल्सो अदर मेजर. इट कैन बी नोन दैट द पोर्शन of unseen data that will misclassify is a boundary and less than or equal to number of support vector machine, number of training example. Occam's razor principle, simpler system are better than more complex one. In SVM cases, fewer support vector means a simpler representation of the hyperplane. For example, understand a certain cancer, if it can be described by one gene is easier than if we have to describe it with 5000. यानी एक कोई जीन से हम लोग 5000 जीन हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। इट इज़ राइट, सभी को हमें यूज़ नहीं करना है, एक से ही हम लोग, एक सेल से ही हम लोग काम ले सकते हैं, राइट। अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रोटीन लोकलाइजेशन. अ प्रोटीन आर synthesized in the cystosol, right, transported into a different subcellular location where they carry out in the their function to predict in what location a certain protein will end up. ये थोड़ा बायोलॉजिकल है, यहाँ पे सब सेल्यूलर लोकेशन है, हमें उसके अंदर थोड़ा इमेज क्लासिफिकेशन करके भी हमें निकालना है, राइट। तो एक छोटा सा ये SVM। तो एक और भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक और भी एक टर्म से क्रॉस वैलिडेशन. स्प्लिट डेटा इनटू अ n सेट, ट्रेन ऑन द n-1 सेट, टेस्ट ऑन द सेट लेफ्ट आउट ऑफ ट्रेनिंग. यहाँ पे न्यूक्लियर 1 2 3, टेस्ट डेटा 1 and 1. और ये थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव, ट्रू फॉल्स नेगेटिव, ये मीन्स यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स भी यूज़फुल होगा. तो व्हाट इज़ द कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, हम लोग कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स भी ड्रॉ करेंगे, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स भी समझेंगे कि उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू के अंदर ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, उसके मतलब क्या है, उसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे. अब एक और भी प्रॉब्लम है कि आर्मी टैंक है, तो इमेज क्लासिफिकेशन, राइट, यहाँ पे हमारी ओन आर्मी टैंक है और एनिमी आर्मी टैंक है, उसको कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, राइट, उसको कैसे क्लासिफाई करके हम लोग रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम, राइट. तो ये सब मॉडल, इस टाइप के मॉडल हम लोग ड्रोन के अंदर फीड करेंगे. तो ड्रोन थ्रू भी हम लोग ये टाइप के इमेज कैप्चर करके उसके ऊपर क्लासिफिकेशन
राइट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लाइफ साइंस के रियल प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, व्हाट इज़ द एसवीएम क्यों यूज़ होता है, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिकल हम लोग सिनारियो चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। support vector machine social network ads, right? Using support vector machine with linear and non-linear kernel to make the predict and compare the difference. Problem statement क्या है? Suppose a company is going to launch a new campaign for their new brand of car. एक नई कार की ब्रांड वो लॉन्च कर रही है, राइट। उसके लिए वो कैंपेन कर रहा है एंड वांट टू नो विच कैटेगरी ऑफ पीपल आर लाइकली टू बाय देयर ब्रांड न्यू कार। उसके लिए वो पीपल, राइट, टारगेट ऑडियंस को कर रही है पीपल, तो किस टाइप की ब्रांड वो बाय कर सकती है, राइट। तो सो दे कैन हैव द एड दैट टारगेट दोज पीपल्स। फॉर दिस दे contacted a social network advertising company which have the data from another similar successful campaign. Now they want to make a model which help achieve their goal. तो यहाँ पे the data set contains 400 entries which contains the user ID, gender, age, estimated salary and purchase history. This matrix of features taken into account are age and estimated salary, which are going to predict if the user is going to buy a new car or not. यस और नो, यहाँ पे टू टाइप की कैटेगरी है। हमें यहाँ पे वाई यस में यस और नो, तो हमारे पास दो कैटेगरी हम लोग प्रिडिक्ट करना है, राइट, कि पीपल आर बाइंग और नॉट, राइट। न्यू कार वो परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, कौन से किस टाइप के ऑडियंस पीपल, राइट, वो नई कार परचेस करेंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट द प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज डन एंड देन द प्रिडिक्शन इज डन यूजिंग सपोर्ट वेक्टर मशीन। हम लोग ने कोडिंग अभी नहीं किया, लेकिन कोडिंग फॉर एग्जांपल कर दिया है। तो हम लोग पहले सॉल्यूशन समझ लेते हैं, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या होने वाला है, उसको हम लोग कोडिंग के थ्रू देखेंगे। तो आपको ऐसे भी इंटरप्रिटेशन करके एक रिपोर्ट बनाना चाहिए, राइट। एक कोई टारगेट कोई डेटा सेट को लो, आप उसके ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम करो, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो, डेटा सेट को प्री प्रोसेसिंग मोड में आपने क्या किया है वो सब लिखो, और सॉल्यूशन क्या आ रहा है वो आप लिखो रिपोर्ट के अंदर, और एक डेवलप करो अपने असाइनमेंट यानी प्रोजेक्ट बनाओ, डेटा साइंस के प्रोजेक्ट बनाओ, राइट। फर्स्ट द प्री प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज डन एंड देन the prediction is done using a support vector and kernel svm। हम लोग कर्नल यानी हमने जो नॉन लीनियर वो देखा वो कर्नल है। द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एंड विजुअलाइजेशन क्लियरली शो द प्रिडिक्शन मेड बाय बोथ मॉडल एंड द डिफरेंस। द डेटा सेट इज स्प्लिट इनटू अ 75-25, राइट। हमारे पास रेशियो है, यानी 400 हमारी पास एंट्री है, उसमें से हमने 75 और 25 रेशियो डिफरेंस है। ट्रेनिंग के अंदर 75 और टेस्टिंग के अंदर 25 डेटा सेट होंगे, राइट। द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स विथ एसवीएम लीनियर कर्नल शोज द आउट our model predict 90% correct and 10% wrong decision with which 90% accuracy। सो यहाँ पे 66 और 24, यहाँ पे 8 and 2, तो इसका कैलकुलेशन 8 और 2, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है। तो 90% राइट है और 10% रॉन्ग वैल्यू है, राइट। द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये जो सेकंड जो है वो कर्नल नॉन लीनियर के, फर्स्ट जो है वो लीनियर के लिए है, लीनियर एसवीएम है, और सेकंड जो एग्जांपल है वो नॉन लीनियर का एग्जांपल है। तो नॉन लीनियर कर्नल के थ्रू एसवीएम शोज द आवर मॉडल इज 93% करेक्ट एंड 7% रॉन्ग डिसीजन विद शोज द 93 एक्यूरेसी। तो यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट बन रहे हैं, द डेटा विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट डेटा इज गिवन बिलो
as in the SVM the kernel was selected as linear, the graph is linear which with a straight line, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको ग्रीन कलर और पिंक कलर, तो पिंक कलर के अंदर रेड डॉट्स है और जो लाइट ग्रीन के अंदर जो आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं और उसके अंदर भी आपको पिंक डॉट दिख रहे हैं, वो जो पिंक डॉट दिख रहे हैं वो ग्रीन के अंदर वो रॉन्गली क्लासिफाइड हुए हैं, और जो पिंक के अंदर जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं वो रॉन्गली राइट, वो आपके एरर्स राइट मीन्स रॉन्ग डेटा आपका प्रिडिक्ट हुआ है right. The graph is linear with straight line whereas the kernel SVM with non-linear data the graph is non-linear curve. This green dot shows the people buying the car whereas the red dot shows the people not buying the car. यहाँ पे जो red है वो not buying right, जो green है वो buy करेंगे right, जो red है वो buy नहीं करेंगे right. On the green region shows the true positive whereas the red dot on the red region shows the true negative. The wrongly classified are the green dot in red region false negative and red dot in green region false positive. तो ये जो है हमारे ट्रेनिंग के डेटा है, यहाँ पे है टेस्टिंग के डेटा है और नीचे कर्नल एसवीएम यूज़ किया है। यहाँ पे जो ये एसवीएम जो हुआ है राइट, देयर इज़ नो लीनियर, एक बीच में जो लाइन है वो लीनियरली नहीं है, वो सर्कल में है, तो ये कर्नल एसवीएम ट्रेनिंग डेटा हो और नीचे जो है वो टेस्टिंग डेटा। तो कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, द फ्रॉम द टू मॉडल इट इज़ क्लियर दैट फॉर दिस डेटा सेट नॉन लीनियर कर्नल इज बेटर देन द लीनियर कर्नल एसवीएम एज इट प्रिडिक्ट मोर एक्यूरेटली एंड द ग्राफ इलुस्ट्रेट इट क्लियरली। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एसवीएम जो काम किया वो एसवीएम में से बेटर कौन सा है, हमारा अल्गोरिदम कर्नल यानी नॉन लीनियर जो एसवीएम है वो हमें प्रॉपर प्रिडिक्शन करके दे रहा है, एक्यूरेसी प्रॉपर है। तो ये हमारा लॉजिक है। हम लोग अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। तो प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरी फर्स्ट हम लोग सपोर्ट वेक्टर मशीन विथ लीनियर कर्नल राइट, लीनियर कर्नल यूज़ करेंगे, लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे। तो पहले हमें NumPy, मैटप्लॉटलिब और pandas यूज़ करेंगे। यहाँ पे नेटवर्क सोशल नेटवर्क ऐड की CSV फाइल हम लोग ऐड करेंगे। ओके, आपको मैं ये GitHub में दे दूँगा और लिंक भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना SVM एल्गोरिदम। ओके, हमें यहाँ पे डेटा सेट ऐड करना पड़ेगा। ये टेम्पररी डेटा सेट यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, अपलोड ये मेरा CSV फाइल है। ओके, यहाँ पे मैं कॉपी करके कॉपी द पाथ और पाथ को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पे हमें उसका पाथ मिल जाएगा, तो प्रॉपरली हम लोग CSV फाइल एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो अभी एरर निकल जाएगी। यहाँ पे यूज़र आईडी, जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेज राइट। तो यूज़र आईडी जो न्यूमेरिक वैल्यू है, जेंडर मेल फीमेल है, एज 19, मेल 35, सैलरी एस्टिमेटेड सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई लॉग 2/3 यहाँ से फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक हम लोग क्या फर्स्ट 0 1 राइट 0 1 2 3, तो ये दो कॉलम को हम लोग यूज़ करेंगे एक्स एक्सिस या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट। ओके, तो यस, स्प्लिटिंग द डेटा इनटू द ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए हमें कौन सा क्लास यूज़ करना हुआ, sklearn.model सिलेक्शन ट्रेनिंग टेस्ट। तो ये पहले करना पड़ेगा, एक्स ट्रेनिंग एक्स टेस्ट वाई वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्स डेटा है और वाई डेटा है, और यहाँ पे टेस्ट साइज हमारा 0.25, रैंडम स्टेट 0 लिखा है। यहाँ पे हम 2 3 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे 75 और 25 का रेशियो हो गया। अब एंटर,
चेक करो एक्स के अंदर ये आपकी वैल्यू प्रिडिक्ट, ये वैल्यू आ गई, यही वैल्यू को हमने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग मीन्स आपकी जो भी वैल्यू है उसको एक फीचर यानी 1 0 में कन्वर्ट करेंगे। प्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर एक्स ट्रेन जो डेटा है उसको एक फॉर्मेट में लेके आएंगे 0 और 1 में। एस सी फीड इसके अंदर एक्स ट्रेन डेटा पास करेंगे, एक्स टेस्ट के अंदर एस सी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्स टेस्ट को, राइट। एक्स टेस्ट एक्स, राइट, एक्स ट्रेन, राइट। तो वैल्यू हम लोग एंटर, इट इज कॉल्ड फीचर सिलेक्शन। फिटिंग द क्लासीफायर टू द ट्रेनिंग सेट। अभी हमें क्या करेंगे, क्लासीफायर यानी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे एस वी सी, राइट। एसकेलन एस वी एम इम्पोर्ट एस, हम जब भी हमें लीनियर यूज़ करना है तब एस वी सी यूज़ करना पड़ेगा, एस वी सी, राइट। एस वी सी यानी हमारा सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन। एस वी सी का फुल फॉर्म है सपोर्ट। ये देखो मैंने यहाँ पे कर्सर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हुआ, उसके अंदर टूल टिप के अंदर हमें क्लियरली लिखा था इम्पोर्टेंट बेस्ड ऑन द लिब एस वी एम फिट टाइम स्केल एटलीस्ट क्वाड्रिलेटरिकली विच नंबर ऑफ द सिंपल। तो यहाँ पे हमें ये लीनियर कर्नल, हमें कौन सा कर्नल पास कर रहे हैं, लीनियर, और रैंडम स्टेट यहाँ पे 0 है। एस वी सी ये रहा, और क्लासीफायर और फिट, उसके अंदर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हम लोग फीड करेंगे। हमारा ट्रेनिंग मॉडल डेवलप हो गया। यहाँ पे मॉडल डेवलप होने के बाद हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे। वाई प्रिडिक्ट इज इक्वल टू क्लासीफायर, ये क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट एक फंक्शन है प्रिडिक्ट, और उसके अंदर एक्स ट्रेन, पहले ट्रेनिंग डेटा टेस्ट एक्स टेस्ट डेटा पास करेंगे, और उसमें से हमें वाई प्रिडिक्शन वैल्यू ये डॉट टेक फॉर्म में हमें एक फॉर्मल डेटा में मिल गए। मेकिंग द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, उसके बेस पे हम लोग क्या बनाएंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए एसकेलन डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, राइट। तो सी एम इज इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, उसके अंदर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर क्या पास करेंगे, वाई टेस्ट कोमा वाई प्रिडिक्ट, जो भी हमने प्रिडिक्शन किया, राइट। वाई टेस्ट के अंदर हमारे एक्चुअल डेटा होंगे और वाई प्रिडिक्ट हमारे अंदर प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे रहेगी। तो प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, एंटर। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये रहा। हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स नहीं पता है तो आप लिखो यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, राइट, इन मशीन लर्निंग। आपको थोड़े कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज एन, अभी हमारा जो डेटा है बाइनरी डेटा है, 2x2 का मैट्रिक्स हमें इवेल्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासीफायर। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग क्या है, तो पहले मशीन लर्निंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें यहाँ पे देखो एंड टोटल प्रिडिक्शन, ट्रू नेगेटिव, एक्चुअल नंबर और प्रिडिक्टेड। यहाँ पे नो वैल्यू वाई वैल्यू, नो और यस, एक्चुअल नो और एक्चुअल यस। तो यहाँ पे ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग रिकॉल्स, प्रिसिशन, एफ वैल्यू ये सब निकालेंगे, राइट। फॉर टू प्रिडिक्शन क्लासेस ऑफ क्लासीफायर द मैट्रिक्स इज 2x2। हमारा जो प्रिडिक्शन है यस नो के बीच में है, राइट, क्लासिफिकेशन है, तो 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा, राइट। द मैट्रिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 डायमेंशनल दैट आर predicted value and actual value along with the total number of prediction। हम लोग confusion matrix को error matrix भी बोलेंगे, राइट। यहाँ पे लिखा है error matrix। the confusion matrix is the matrix used to determine the performance of the classification model। आपका मॉडल का परफॉर्मेंस कैसा है। for a given set of test data it can only be determined if the true value for test data are known or matrix itself can be easily understood but the related terminology may be confusing since it showing the error in the model performance। यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव TN, फॉल्स पॉजिटिव यानी FP, और FN फॉल्स नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव। यहाँ पे जो ट्रू नेगेटिव और फॉल्स उसका मतलब क्या है, ट्रू नेगेटिव मॉडल हैज़ गिवन प्रिडिक्शन नंबर, prediction no and the
real or actual value was also no. The true positive model has predict yes and the actual value was true. तो हमारा जो मॉडल जनरेट हुआ है 666 और ये डायगोनल्स ये वर्टिकल डायगोनल जो है वो जो 66 और 24 है हमारी ट्रू जो पॉजिटिव है ये ट्रू नेगेटिव और ट्रू पॉजिटिव वैल्यू है ये डायग्नोसर। आपकी एरर जो है वो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव का समेशन होगा, वो आपकी एरर होगा। फॉल्स नेगेटिव यानी ये वाला टाइप 2 एरर एंड फॉल्स पॉजिटिव यानी टॉप टाइप 1। इट इज़ डिफाइंड थ्रू द हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस जब डिफाइन करेंगे तब हमें नीड फॉर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की ज़रूरत क्या है? इट इवेल्यूएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल when they make prediction on test data and tell how good our classification model is. It not only tell the error made by the classifier but also the type of error, such as it is error either a type 1 error or type 2 error. We understand the confusion matrix using examples. Suppose for example we are trying to create a model that can predict the result for disease that is either a person has that disease or not। किसी को कुछ टाइप का जो राइट डिजीज है कि नहीं है उसका मैट्रिक्स कंफ्यूजन। तो यहाँ पे देखो 65 प्रिडिक्टेड में क्या है 65 और एक्चुअली भी वो 65 है। उसके अंदर प्रिडिक्टेड में क्या है राइट टोटल प्रिडिक्शन हमारा कितना है 68 को हमने प्रिडिक्ट किया, उसमें से एक्चुअली 3 को डिजीज़ है ही राइट और एक्चुअली 65 को डिजीज़ है लेकिन प्रिडिक्शन में भी 3 को एक्चुअली डिजीज़ है तो टोटल 68। और प्रिडिक्शन में जो y है उसमें एक्चुअली 8 को राइट नहीं है और 25 एक्चुअली नहीं है राइट। तो 32 हमारा जो है वो प्रिडिक्टेड में आया है कि एक्चुअल। तो 73 और 27 यहाँ पे 100 हमारे रिजल्ट है। The table is given for the two class classifier which has two prediction yes or no। yes define that patient has disease right यानी yes define the patient has disease or no define the patient does not has that disease। the classifier has the total 100 prediction out of 100 prediction 89 are true prediction। 89 यानी ये और इसका सम करेंगे तो 65 प्लस 24 यानी 89 प्रिडिक्शन क्या है ट्रू है और 11 आर इनकरेक्ट प्रिडिक्शन। 8 प्लस 3 इसका मतलब क्या होता है 11 आर इनकरेक्ट। द मॉडल हैज़ गिवन प्रिडिक्शन यस 32 टाइम्स predict 32 time prediction and no is the 68 time whereas the actual is the 27 and 73 was time right। कैलकुलेशन यूजिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू हम लोग एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे? तो एक्यूरेसी इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव ये 65 प्लस 24 का प्लस करेंगे उसके डिवाइड हम सभी वैल्यू यानी ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ट्रू नेगेटिव उसके नीचे हम लोग 100 करेंगे यानी टोटल हमारा जो है वो 100 करेंगे और जो भी निकलेगा हमारी एक्यूरेसी निकलेगी। तो यहाँ पे हमें एरर रेट कितना है एरर भी निकालना है तो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव उसके अंदर TP प्लस FP प्लस FN प्लस TN तो हमें ये एरर रेट मिलेगा। एरर कितनी है वो भी निकल के आ जाएगा। और प्रिसीजन क्या है TP डिवाइड बाई TP प्लस FP राइट ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। रिकॉल्स किसको बोलते हैं? रिकॉल इज डिफाइंड आउट ऑफ टोटल पॉजिटिव क्लासेस हाउ आवर मॉडल प्रिडिक्ट द करेक्टली द रिकॉल मस्ट बी एज अ हाई एज अ पॉसिबल। ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव है यहाँ पे प्रिसीजन में, यहाँ पे फॉल्स नेगेटिव है, छोटा सा डिफरेंस है राइट। और एफ वैल्यू किसको एफ टू मॉडल्स हैव लो प्रिसीजन एंड हाई रिकॉल or vice versa it difficult to compare this model so for this purpose we can use f score f measure भी उसको बोला जाता है। this score help us to evaluate the recall and precision at the same time। the f score is the maximum if the recall is evaluate to the precision it can be
calculated using below formula. 2 into recalls into precision divided by recall plus precision, it's called f f f मेजर. यहाँ पे नल एरर और ROC और वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थोड़ा अलग टर्म्स है, राइट. तो स्टूडेंट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एसवीएम रिलेटेड पता चला है. हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, हमारे विजुअलाइजेशन करते हैं. विजुअलाइज द ट्रेनिंग सेट रिजल्ट. यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन. एक्स सेट को हम देंगे तो हमारा यहाँ पे विजुअलाइजेशन हुआ. यहाँ पे हमारे जो पिंक है वो 0 डॉट है और ग्रीन है वो 1 डॉट है. तो हमारी ये प्रिडिक्शन यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि हमें कैसे निकालना है. तो आपको ये इस टाइप का प्लॉट क्रिएट करना है तो मैट प्लॉट लिब. यहाँ पे कलर इंपोर्ट लिस्टेड कलर मैप क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा. x1 x2 इक्वल टू np डॉट मैस ग्रिड. मैस ग्रिड अभी जो हमने प्रिंट किया वो मैस ग्रिड है. उसके अंदर np अरेंज स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, स्टेप कितना लेना है. तो सेम np अरेंज के अंदर सेम माइनस यहाँ पे -1 स्टॉप, राइट. 2 टाइम हमने ये मैस ग्रिड यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 2 सेट है, राइट. तो plt काउंटर एफ, राइट. यहाँ पे क्लासीफायर यहाँ पे पास करना पड़ा x1 x2. यहाँ पे क्लासीफायर जो हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट. तो यहाँ पे जो प्रिडिक्टेड वैल्यू जो हमने पास की है उसको रीसेप करके इसको यहाँ पे रीसेप किया है, यानी 2 डायमेंशनल को डेटा को लाके यहाँ पे कन्वर्ट किया है. 2 डायमेंशनल रीसेपिंग किया, एरे रीसेपिंग, राइट. आपको NLP मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको पता है. तो यहाँ पे सी मैप के अंदर लिस्टेड कलर मैप के अंदर एक रेड कलर होना चाहिए, ग्रीन कलर. तो PLT एक्स लिम और वाई लिम. तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू. लूपिंग इटरेटिव अपने जो भी डेट सेट है यहाँ पे वाई सेट के अंदर हमें यूनिक वैल्यू को इटरेट करवाया है. इटरेट करके PLT स्कैटर प्लॉट एक्स कैट वाई सेट इक्वल टू IJ कोमा 0 एक्स अंडरस्कोर सेट वाई अंडरस्कोर सेट इक्वल टू J. तो ये लूप अल्फ़ा, राइट. और यहाँ पे रेड जो भी कलर है वो स्कैटर प्लॉट के अंदर कलर हमने इनमरेट किया है. और यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा है. एक्स साइड हमें एज है और वाई साइड हमें एस्टिमेट सैलरी है. तो हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन है. ये बॉटम साइड पे एज है, यहाँ पे सैलरी है एस्टिमेटेड सैलरी. तो हमने यहाँ पे लीजेंड यानी ये जो बॉक्स प्रिंट हुआ है वो लीजेंड के थ्रू प्रिंट हुआ है. तो ये जो हमारा जो प्रिडिक्शन हुआ है क्लासिफिकेशन SVM क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट. और ये ट्रेनिंग डेटा ये टेस्टिंग डेटा पे टेस्ट सेट के ऊपर हमने प्रिडिक्शन किया है. टेस्ट सेट पे हम लोग एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे प्रिडिक्शन मिल रहा है, ओके. तो हमें ये इसके अंदर हमें एक्यूरेसी प्रिंट करना है. हमारे मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है वो प्रिंट करना है. तो हम लोग कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में हमने देखा कि एक्यूरेसी कैसे प्रिंट करना है. तो एक्यूरेसी प्रिंट करने के लिए ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय 100. तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव यानी ये हम लोग 66 प्लस 24 डिवाइड बाय हमारा 66 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 24 एंटर. तो हमें एक्यूरेसी प्रिंट होके आ जाएगी. तो हमारी मॉडल की एक्यूरेसी 0.9 है. तो हमने यहाँ पे क्लियरली पढ़ा था कि 90% हमारी एक्यूरेसी है किसके अंदर, लीनियर कर्नल के अंदर, राइट. और आप लोग ये वाला कर्नल वाला प्रैक्टिस करना. मैं आपको ये यहाँ पे आपको अपलोड करके दे देता हूँ. इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बट आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग. मैं आपको ये आज की PPT भी शेयर कर रहा हूँ.
ओके स्टूडेंट, एटलीस्ट अभी और भी एक मेरे पास है वो, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो एक एस का, राइट, चलो मैं यहाँ पे टाइम है 6 मिनट, राइट, पेंडास पीडी मैटप्लॉट, यहाँ पे हमारा चर्न डेटा का है। चर्न डेटा यानी हमारे पास कस्टमर, टेन्योर, फोन सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट, पेपरलेस बिलिंग, पेमेंट मेथड, मंथली चार्ज, टोटल चार्ज, चर्न, यानी चर्न डेटा है। तो उसके अंदर ये कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट यानी कौन सी ये सर्विस इन फ्यूचर, टेन्योर, राइट, कोई कस्टमर है फ़ोन की कोई सर्विस यूज़ कर, टेलीकॉम सर्विस डेटा यूज़ कर रहा है, तो ये कितने टाइम से यूज़ कर रहा है, 1 मंथ, ये 34 मंथ से, 2 ईयर से, राइट, 45 मंथ से। तो यहाँ पे ऐसा प्रेडिक्ट करना वो कौन सी सर्विस ले रहा है, तो फ़ोन की सर्विस नहीं है, ये फ़ोन सर्विस यस है, कॉन्ट्रैक्ट कब से चल रहा है, पेपरलेस वो बिल किस टाइम कैसे ले रहा है, पेपरलेस बिल है यस, नो पेपरलेस, पेमेंट मेथड कौन सी यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक, मेल चेक, बैंक ट्रांसफ़र, वो पेमेंट कैसे कर रहा है, तो बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें ये डेटा कैसे, या और ये मंथली चेक कैसे चार्ज कर रहा है, मंथली चार्ज, टोटल चार्ज, और इन फ्यूचर कौन सा कस्टमर सर्विस नहीं छोड़ेगा, राइट, और हमारी सर्विस कंटिन्यू करेगा। तो ये जो चर्न है नो, तो ये नो यानी वो फ्यूचर में, नो मतलब 1 मंथ नो फ़ोन कॉल। तो ये एक डेटा है, ये 34 टेन्योर से यूज़ कर रहा है, राइट, तो ये नहीं छोड़ेगा हमारी सर्विस, ये नहीं छोड़ेगा, ये भी नहीं छोड़ेगा, ये प्रिडिक्शन कर रही है यस नो। और यस से हमें क्या पता चलेगा, ये शायद हमारी सर्विस को ट्रंकेट करेगा इन फ्यूचर, राइट। ये नो है तो ये भी नहीं फ्यूचर में छोड़ने वाला है, राइट। यस है तो ये इन फ्यूचर वो हमारी सर्विस ट्रंकेट करेगा। यानी ये जो जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है, वोडाफोन है, तो ये जो डेटा उसके ऊपर के डेटा जो प्रिडिक्शन करना है, तो उस टाइम ये डेटा यूज़फुल रहेंगे। रन ऑल से हम लोग पूरे जुपिटर नोटबुक को रन कर सकते हैं। रन ऑल से 1 बाय 1 कुछ एरर होगा तो हमें पता चलेगा। डेटा सेट हमारा नहीं है तो शायद यहाँ पे एरर आएगी। तो मैं डेटा सेट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे करूँ, अपलोड। चर्न डेटा मेरे पास मैंने डाउनलोड किया है, चर्न, ओके। रिमाइंडर अपलोड फाइल विल गेट डिलीट व्हेन दिस रन टाइम इज रिसाइकल। ओके, तो हमारे यहाँ पे चर्न डेटा यहाँ पे आ गया। कॉपी करो, कॉपी पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दो। वापिस 1 बाय 1 रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्न मॉडल, ये हमारा डेटा डिस्प्ले हो गया। शेप कितना शेप है, कितने 7000 रोज है, 9 कॉलम है। डिस्क्राइब से हम लोग को क्या पता चलेगा, राइट, स्टेटिस्टिकल, नोड, मीडियन, डिस्ट प्लॉट, यानी हमें प्लॉटिंग के अंदर टेन्योर यहाँ पे हम लोग सपोज रेट नहीं पास करेंगे, हमारा डेटा इस तरह से डिस्प्ले होगा। सपोज हमें इसके अंदर कलर पास करना है तो डेटा हमें कलर में प्रिंट होगा, ओके। तो यहाँ पे टेन्योर, यहाँ से देखो ये टेन्योर में ये डेटा, और बाकी ये जो है स्क्रू डेटा है, यहाँ से वापस स्क्रू डेटा मिल रहा है। तो ये जो टेन्योर है यहाँ पे मिनिमाइजेशन हुआ है 40 और 80 में वापस मिल रहा है। इनिशियली टेन्योर में लोग ज़्यादा सर्विस यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हेड पेपर बिलिंग में से हम लोग वैल्यू काउंट करेंगे कितना है, यस वैल्यू कितनी है, नो वैल्यू कितनी है, हमें की निकालना है, यस नो कितना है, कौन सी वैल्यू यस है और यस, राइट, यस नो। पेपरलेस बिलिंग में 41, 70 और 287 हमारी वैल्यू है, उसका हमने एरे निकाला। नेक्स्ट उसका प्लॉट हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे यस वैल्यू को पेपरलेस कितने यूज़ कर रहे हैं, नो पेपरलेस कितने, ऐसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अभी कैसे प्रिंट करना है,
कभी भी कुछ भी आपको प्रिडिक्ट करना आ सकता है, राइट। कल मैंने बात किया था, राइट, टेब्यूलो, तो टेब्यूलो के थ्रू भी आप लोग ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, राइट, हाई वॉल्यूम डेटा। पेमेंट मेथड कैसी है, राइट, कितनी है, तो 4 टाइप ऑफ पेमेंट मेथड, इसमें से 7,000 रिकॉर्ड्स है, उसमें से ई चेक कौन यूज़ कर रहा है, राइट, एम चेक, बैंक ट्रांसफ़र, क्रेडिट, ये कैसे है, राइट। तो यहाँ पे नीचे हमें पेमेंट मेथड का भी लिस्ट मिल रहा है, राइट। यहाँ पे ये आप लोग यूज़ कर रहे हो, राइट। सो उसको हम लोग कॉलम चार्ट बोलते हैं इसको, राइट। हेड, नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, मंथली, मंथ टू मंथ, 2 ईयर, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। आप फॉर एग्जांपल आप ये इंटरनेट सर्विस वाले डेटा भी ऐसे ही होते हैं। इंटरनेट सर्विस आप लोग इंटरनेट 1 ईयर का लेते हो, मंथ टू मंथ, 6 मंथ, 2 ईयर, इस टाइप वहाँ पे भी आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे उस टाइप के डेटा सेट पे। चर्न, चर्न यानी सर्विस कौन स्टार्ट रखेगा, कौन बंद रखेगा, राइट। तो चर्न वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है, टेन्योर वर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग डेटा स्प्लिटिंग कर रहे हैं, 20:75 रेशियो हम लोग डेटा SVC लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, लीनियर, सॉरी रिग्रेशन नहीं, लीनियर SVM कर रहे हैं। डेटा को फीड करवाया, प्रिडिक्शन हमने अप्लाई किया, प्रिडिक्शन अप्लाई करके, राइट, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स प्रिंट किया। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखो ये 1130 और 160 हमारा प्रॉपर डेटा है। ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बाइनरी डेटा है। टेन्योर और सर्विस, चर्न सर्विस जो है हमारी, प्रिडिक्शन कितना है उसका, एक्यूरेसी कितनी है हमारे मॉडल की, तो 75 एक्यूरेसी है। ग्राफ मैंने प्रिंट नहीं करवाया, तो इस टाइप के डेटा को आपको ग्राफ भी प्रिंट कर सकते हो, राइट। तो ये एक सर्विस, ये एक डेटा सेट है। और दूसरे डेटा सेट मैं आपको गीट हब के अंदर रख के आपको दे दूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली गीट हब के अंदर सेव अ कॉपी, गीट हब, यहाँ पे ML एल्गोरिथम, ओके। तो डायरेक्टली ये SVM वाला वहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और ये भी वहाँ पे स्टोर हो जाएगा SVM, ML, ओके। तो मेरे अकाउंट में ये स्टोर हो गया। डेटा सेट भी आप ले सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे पूरा कोड आपको मिल जाएगा यहाँ से, ओके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने ये डेटा सेट यहाँ से मिल जाएगा आपको, राइट। तो आप प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट करो, पढ़ो और ट्राई करो अपने हिसाब से। थैंक्स फॉर SVM, राइट। टुडे वी कवर द SVM।